بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورۃ الحامیم سجدہ پر ہو چکا تھا اور آج یہاں سے انشاءاللہ سورۃ الشعراء کی شروعات ہے۔ سورۃ الشعراء یعنی کہ جو مشورے سے عمل میں لانا، حکومتی کاموں کو یعنی کہ جتنے بھی وہ کام ہیں ان کو آپس کے مشورے سے اس کے اوپر یعنی کہ عمل کرنا، یعنی کہ یہ جو صورت ہے اس میں زیادہ تر جو بیان ہے وہ ہے جو حکومت سے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں، یعنی کہ جو شرعی حکومت کے اوپر جو لاگو ہیں کام اور ان کو کس طرح کرنا، ان کا وہ کافی جو حصہ اس میں وہ چونکہ شورا نام ہی اس کا شورا ہے، اس لیے وہ شورا کا ہی سارا معاملہ ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے اور بعد میں کافی چیزیں اور بھی ہیں جو کہ ابھی انشاءاللہ چلتے چلتے آئیں گی۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا حامیم، یہ حرف مقطعات ہے اور اس صورت میں دو دفعہ دو آیتوں میں 5 حروف مقطعات بیان کیے۔ پہلے میں حامیم ہے، دوسرے میں ہے عین سین قاف، تو یہ 5 حروف مقطعات ہیں، یہ اسی صورت میں اسی طرح ہوا ہے۔ تو فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح وحی کی آپ کی طرف بھی اور جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی طرف بھی، کہ اللہ جو ہے وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی کہ یہ چیز وحی کی گئی پہلے بھی اور آپ کو بھی کہ اللہ جو ہے وہ ہے سب سے غالب، سب کے اوپر غالب، سب زبردست اور بڑی حکمت والا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور وہ ہے بلند اور بڑا۔ یہ دیکھیں ان دونوں آیتوں میں اللہ پاک نے اپنی وہ بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے اس طرح وحی کی اور اللہ پاک ہی کا ہے، یعنی کہ یہ جو زمینوں آسمانوں میں ہے۔ تو اس لیے چونکہ میں نے بتایا شروع میں اس کا مین جو مضمون ہے اس صورت کا وہ ہے شورا کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کس طرح نافذ کیا جائے، یعنی کہ اس کے اوپر کس طرح مطلب وہ عمل کیا جائے۔ تو یہ چیزیں اس لیے بیان کی گئی کیونکہ یہ حکمیت ہی اللہ کی ہے، مالک ہی اللہ ہے، تو لہٰذا یہ اللہ پاک بادشاہ ہی اللہ ہے ہر چیز کا، تو پھر حکم بھی اسی کا چلنا ہے۔ یہ چیز بھیجی گئی تمام انبیاء کو تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اپنی منمانی چھوڑ دیں اور اللہ کی غلامی میں آ جائیں۔ اسی وجہ سے مطلب یہ سارا مضمون اس میں وہ شروعات سے مطلب اللہ پاک نے اس طرح بیان فرمایا تکاد السماوات یتفطرون من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان وہ پھٹ پڑے اور اپنے اوپر سے، یعنی کہ وہ آسمان قریب ہوتا ہے کہ پھٹ پڑے اللہ کی یعنی کہ مرضی سے، اللہ کی رضا سے، اور فرشتے جو ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں ساتھ تعریف کے اپنے رب کی اور بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے بہت بخشنے والا اور نہایت رحم والا۔ یعنی کہ اتنی سختی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے، وہ جتنے برے عمل کر رہا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، اللہ پاک نے سورہ مریم میں فرمایا کہ ان کے یہ کہنے سے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، یہ قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وہاں بھی اسی طرح کا ذکر ہے۔ تو یہاں بھی یہی ذکر ہوا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ پھٹنے کی وجہ کہ انسان انتہائی اپنی غلامی کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی غلامی کو چھوڑ کر، ایک وہ چیز جو اپنی مخلوق میں سے اللہ پاک نے باشعور بنائی، اس نے اب اللہ کی غلامی کا اختیار کرنا پیچھے کر کے مطلب شیطان کی غلامی کر رہی ہے۔ تو لہذا اس سے قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، اور فرشتے جو ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں اور فرشتے مغفرت مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے۔ یہاں آیا ان کے لیے جو زمین میں ہے۔ سورۃ الحدید میں ہم پڑھیں گے کہ فرشتے بخشش مانگتے ہیں مومنین کے لیے، وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اب تمام مومنوں کے لیے۔ تو لہذا اللہ کو بولتے ہیں اللہ تیرا علم جو ہر چیز پہ ہے اور تو بخش دے ان کو جو اتباع تو تائب ہوگے،
जो ताइब हो, जो पलट आए तेरी तरफ, उनको बख्श दे। ये फरिश्ते हर के लिए, किसी के लिए नहीं बख्शिश मांग रहे। यहाँ तो कह दिया ना, यहाँ तो फरमाया गया कि वो जमीन के लिए, तो दूसरी आयत में इसकी तशरीह फरमा दी वो किन के लिए, वो जो ताइब होते हैं। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक अल्लाह पाक गफूर रहीम है, बख्शने वाला मेहरबान है। वल्लज़ीन इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हफीजुन अलैहिम वमा अंत अलैहिम बिवकील। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और जिन लोगों ने पकड़ लिए हैं उसके सिवा हमायती दोस्त, हमायती यानी कि और कारसाज अल्लाह के अलावा औलिया बना रखे हैं। औलिया दूसरों के सामने सजदे कर रहे हैं, दूसरों के साथ अपने एतकाद रखे हुए हैं, दूसरों के किसी और चीजों के ऊपर अपने गुमान रखे हैं। आजकल हम जाते हैं, लोगों ने अपने दुकानों और मकानों में वो आजकल नया एक चला है जिसमें यही हरूफ मुख्तात उन्होंने रखे होते हैं और लिखा होता है कि इससे खैर बरकत होगी। तो ये अकीदे हैं कुफराना, यानी कि ये जो चले आ रहे हैं। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया इन्होंने इस तरह के औलिया बना रखे हैं, अल्लाह खूब निगहबान है इन पर, और इन्हें और नहीं आप इन पर कोई जिम्मेदार, यानी कि अल्लाह पाक खुद इनको देखेगा। आप जो है ना, आप इनके ऊपर कोई वकील नहीं है, आपने मतलब आपका काम है बताना। वकज़ालिका, फिर यहाँ वही मजमून शुरू हुआ, वकज़ालिका औहैना इलैका कुरआनन अरबिय्यन लितुनज़िरा उम्मुल कुरा वमन हौलहा वतुनज़िरा यौमल जमअ ला रैब फीहि फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर। तो ये कॉन्सेप्ट, ये पूरा यानी कि उसका जो मुकम्मल अल्लाह पाक ने पीछे फरमाया ना कि आप जो है ना, आप इनके ऊपर वकील नहीं है, अल्लाह पाक जानता है जो भी। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने जहां उनको क्लियर फरमाया कि इसी तरह हमने आपकी तरफ वही किया इस कुरान को। एक बात बड़ी ज़हन यह देखिए, यहाँ फिर आ गया, यही बात सूरह इनाम में भी आई है कि अल्लाह पाक ने जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही किया वो है कुरान। यहां भी ये देखें, कुरान अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हारी तरफ वही किया। लोग बोलते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ हदीसें भी वही की गई, ऐसी कोई बात नहीं। कुरान अल्लाह पाक ने बार बार कुरान में 2 दफा फरमा दिया, यहाँ भी, और दूसरा मैंने आपको बताया सूरह इनाम में भी, वहां भी इसी तरह हमने इसी तरह आपकी तरफ वही किया कुरान। तो लिहाजा हमने आपकी तरफ वही किया कुरान अरबी जुबान में। और वजह उसकी क्या थी, ताकि इतला करें, ताकि आप इतला करें मक्का उम्मुल कुरा, यानी कि ये जो बस्ती के लोग हैं इनको भी, और जो इसके इर्द गिर्द हैं, यानी कि मक्का में नबी अलैहिस्सलाम मबूस थे, मक्का में अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि आप इनको भी इतला करें जो इनके इर्द गिर्द है। इनके इर्द गिर्द क्या है, पूरी दुनिया। तो लिहाजा आप आए हैं इनकी तरफ भी और पूरी दुनिया की तरफ भी। तो और आप इतला करें उस जमा होने वाले दिन से, यानी कि जिस दिन जमा किए जाएंगे उस दिन से आप इनको इतला कर दें, जिसमें कोई शक नहीं। उस दिन एक ग्रोह होगा जन्नत में और एक ग्रोह होगा दोज़ख। ये देखिए, 2 ग्रोहों की बात है, कोई तीसरा और ग्रोह नहीं है। कोई मुनाफिकीन, जो जिनको हिपोक्रेट्स बोलते हैं, जो दो मुंह है, जो ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, अल्लाह पाक के सामने कुछ और मतलब लोगों के सामने कुछ, इस तरह के मतलब लोग हैं जो। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने जो अल्लाह की बात मानते नहीं, कहते हैं मानते नहीं, तो अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसे लोगों को जहन्नम में नीचे दर्जे होंगे जहन्नम में। 2 ही ग्रोह हैं, एक जन्नती और एक जहन्नमी। तो लिहाजा एक तो हो गया अल्लाह का ग्रोह और एक हो गया शैतान का ग्रोह। हर बंदा अभी खुद फैसला करे कि वो किस ग्रोह में जाना चाहता है। अगर तो वो चाहता है कि मैं अल्लाह के ग्रोह में जाऊं, तो उसको फिर अमल भी वही करने पड़ेगी, खाली चाहने से तो कुछ नहीं होगा। ये तो अमल जरूरी है, अमल जरूरी है तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है, रंगीन ख्यालों से तो कुछ नहीं होगा। खाली सोचता रहे कि मैं अल्लाह के ग्रोह में जाना, तो अमल वो शैतान वाले करते रहे, पकड़े रहे, तो फिर किधर से अल्लाह के ग्रोह में जाएगा। तो लिहाजा ये चीज है जो शऊर वाले पकड़ते हैं और हासिल करते हैं। और फरमाया वलौ शाअल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही वज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। ये देखें अल्लाह पाक ने दूसरी जगह फरमाया कि यानी कि वला नसीर फरमाया, और अगर चाहता अगर अल्लाह चाहता तो वो बना देता हर सबको एक ही। यानी कि अगर अल्लाह चाहता तो आप देखते हैं कि तारे चल रही हैं, जो मिसाल के तौर के ऊपर एक तरह के परिंदे वो सब झुंड के झुंड जा रहे होते हैं एक ही तरफ, एक ही सिमत में।
इसी तरह जानवरों में आप देखें, जो शेर होते हैं वो एक ही गुट में गठे चल रहे होते हैं, जो मतलब दूसरे टाइप के जो एक तरह के जानवर हैं वो उसी तरह चल रहे होते हैं। इसी तरह आप समुद्र में चले जाएं, मछलियां वो भी जो एक नस्ल की एक तरह की होती है वो सब इकट्ठी चल रही होती हैं। तो अल्लाह ताला को क्या मुश्किल है इंसानों को भी एक ही तरह पे करना, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, यानी कि चीज ये चीज तो अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह दाखिल करता है जिसे चाहता है अपनी रहमत। यानी कि सबसे बड़ी रहमत है अल्लाह ताला अपनी गुलामी की तौफीक दे दे, अपने राह की हदायत दे दे। तो ये अल्लाह पाक उसको देता है जो यानी कि जिसके लिए अल्लाह चाहता है, और किसको नहीं देता साथी वरना, और जो बेइंसाफ है नहीं है उनके लिए कोई दोस्त और ना कोई मददगार। सबसे बड़ी चीज है बेइंसाफी, जुल्म, जालिम। सबसे बड़ा अल्लाह पाक कुरान में आता है, सूरह लुकमान में हमने पढ़ा, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम। सबसे बड़ा बेइंसाफी जो है, सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शिर्क है। जो बात अल्लाह की बता ना माने और दूसरों की माने, शैतान की माने, कुफार की माने, या अपने ऐसे अपना उलमा और मशाइख की माने जो अल्लाह के रास्ते को छोड़े हुए हैं, तो फिर वो या अपने नफ्स की माने, तो फिर क्या है कि वो अल्लाह की बात नहीं मान रहा बल्कि इन चीजों की मान रहा है। तो लिहाजा वही यही चीज है जो अल्लाह का साजी बनाना है, अल्लाह के साथ वो पार्टनर बनाना, अल्लाह की बात को पीछे करना और इन सब की बातों को आगे कर लेना। तो फरमाया ऐसे लोग हो गए बेइंसाफ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तो बेइंसाफों का नहीं कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। अमित्तखज़ू मिन दूनिही औलिया फल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युहयिल मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ, या उन्होंने बना रखे हैं, क्या उन्होंने बना रखे हैं यहाँ, ये बल्कि उन्होंने बना रखे हैं इसके सिवा कारसाज, यानी कि अल्लाह के अलावा उन्होंने और कारसाज बना रखे हैं। बस अल्लाह ताला वही है कारसाज और वही है जिंदा कर, वो जिंदा करेगा, यानी कि वही जो जिंदा करेगा और मुर्दों को, और वो ऊपर हर चीज के कादिर। यानी कि इन्होंने और कारसाज बनाए हैं, हालांकि हकीकी कारसाज सिर्फ अल्लाह है। मौला ये बोलते हैं फलां को मौला, फलां को, तो अल्लाह पाक ने फरमाया मौला सिर्फ अल्लाह है, वली सिर्फ अल्लाह है, कारसाज, नसीर, दोस्त, मददगार सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के साथ कोई साजी नहीं है। आप किसी के जरिए से अल्लाह की तरफ पहुंचना चाहते हैं तो आपका ईमान नहीं है कि अल्लाह पाक आपके शार आपके ज्यादा करीब है, यानी कि इसके ऊपर आपने पूरा ईमान लाना है। आप अपने जरियों को पीछे करना है, अल्लाह से मांगना है जिस तरह मांगने का हक है। अल्लाह पाक आपके साथ है, अल्लाह पाक दोस्त है वलियों का, जो यानी कि जो लोग अल्लाह के रास्ते के ऊपर कायम है उनका। तो आप अल्लाह के रास्ते के ऊपर कायम हो तो आपको अल्लाह की तरफ से हर चीज भी मिलेगी। लेकिन अगर आप अल्लाह से सरकशी करेंगे तो फिर अल्लाह ताला गफूर रहीम तो है लेकिन अजीजुल कहार भी है। तो फरमाया वमख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह। अच्छा, ये देखें यहां एक बहुत अहम बात आ रही है। अल्लाह पाक ने फरमाया और जो भी इख्तिलाफ किया तुमने इसमें किसी चीज में भी, यानी कि जो भी तुम्हारा इख्तिलाफ किसी चीज में भी, अभी किसी चीज के अंदर हर चीज आ जाती है। वुजू भी तो एक चीज है, एक अमल है। इसी तरह खाना क्या है, ये भी एक अमल है। रहना कैसे है, नमाजें कैसे अदा करनी है, और अमाल कैसे करने हैं, ये सारी चीजें है ना, ये इनमें अगर अल्लाह पाक ने फरमाया किसी में भी इख्तिलाफ है तो उसका फैसला अल्लाह ताला की तरफ से। तो फैसला अल्लाह ने अपनी किताब में यानी कि फरमा दिया। ये फैसला कौन सा है, वो जो अल्लाह पाक ने अपनी किताब में बता दिया। असल फैसला वो है जो कुरान में। तो लिहाजा कुरान में जब फैसला मौजूद है उसके बावजूद भी आप मतलब सरकशी करें तो लाजिम बात है आप अल्लाह की बात को मानना ही नहीं चाहते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीबु। तो फरमाया ये है अल्लाह मेरा रब, ये है अल्लाह मेरा रब, उसी पर तवक्कल किया मैंने और उसी की तरफ मैं रुजू हूं, उसी की तरफ मैं मुतवज्जो हूं। यानी कि मेरा अमल यह है कि मैं उसके ऊपर गुजार मानता नहीं। ये बात हकीकत है, ये बात हर किसी को मालूम है कि सब इख्तलाफात जितने कर रहे हैं उनका रिजल्ट अल्लाह ने फरमा दिया। ये आप जो नहीं भी मान रहा उससे भी पूछे, वो भी कहेगा हाँ भाई कुरान हक है। फिर जब उसी को आप बोले कि देखो भाई कुरान में तो वुजू का तरीका ये लिखा हुआ है, आप ये जो दूसरा क्यों कर रहे हैं, उसके ऊपर वो चल पड़ता है अपने उलमा और अपने मुशाइख और अपने फिका की तरफ, कुरान को छोड़ देता है। इसी तरह तमाम अमाल, ये नहीं सिर्फ एक, तमाम अमालों का हाल यही है। तो फरमाया
फतिरुस समावाति वल अर्द जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व मिनल अनआमि अज़वाजन यज़रऊकुम फीहि लैसा कमिथलिहि शैउन व हुवल समीउल बसीर। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वो जिसने पैदा किया आसमानों और जमीनों को, बनाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्स से तुम्हारा जोड़ा, तुम्हारे नफ्स से तुम्हारा जोड़ा किस तरह बनाया अल्लाह पाक ने। देखना हर चीज अल्लाह पाक ने जोड़े की सूरत में पैदा की। हम भी देखते हैं हमारी आंखें भी दो, मतलब हर चीज अल्लाह पाक ने दो दो करके पैदा की, लेकिन इंसान से नफ्स से उसका जोड़ा बनाया। ये बात हमको क्लियर होती है तौरात में जब हम पढ़ते हैं जो पैदाइश का जो वो चैप्टर है उसमें, कि जब आदम अलैहिस्सलाम के अंदर से हवा की तरह माई हवा पैदा हुई, तो यानी कि ये उससे उनका जोड़ा बनाया। और मवेशियों में से जोड़े वो फैलाता है, तुम्हें इसमें नहीं है इसकी मानद कोई चीज नहीं, यानी कि उस जैसा कोई भी नहीं है। ये देखे ना अल्लाह पाक ने उसकी मिसाल कोई नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, दूसरी जगह भी इस तरह अल्लाह पाक ने अल्लाह जैसा तो कोई है ही नहीं। फिर ये किस तरह मौला अली को भी बोल रहे होते हैं, मौला अल्लाह को भी बोल रहे होते हैं, ये मसला है। फिर जो उनके पीछे चलने बोलते हैं नहीं इसका मतलब कुछ और है। मतलब क्या है? मतलब आप दोनों ही है, मौला से अल्लाह पाक ने अपने आप को बोला हुआ है। तो लिहाजा ये अमाल है। इसी तरह और बहुत से चीज, कारसाज किसी और को बना रहे होते हैं, सजदे किसी और के सामने दे रहे होते हैं, औलादे किसी से जाकर मांग रहे होते हैं, पीरों और फकीरों और दरबारों पे जाकर अपने मतलब सर झुका रहे होते हैं। इसी तरह जो हिंदू है मंदिरों के ऊपर जा रहे होते हैं। तो ये सारे अमल आज मौजूद हैं, लेकिन इतना शैतान की तरफ से इतना अंधेरा छाया हुआ है इनके अकलों के ऊपर कि इनको हक सामने होते हुए इनको मालूम भी है देता अल्लाह है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके ऊपर चलने से कासिर है। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर लानत है, जो अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान में। अल्लाह पाक ने उनके ऊपर लानत कर दी और इनको ताबूत गुलाम बना दिया इन सरकशों का, ये जमहूरियत हुकूमत का और इनके जो मतलब चलाने वाले हैं इन सब का, इनको जनाब इन्होंने अल्लाह पाक ने इनको गुलाम बनाकर छोड़ दिया। अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह माइदा में फरमाया कि जिनके ऊपर अल्लाह पाक गजबनाक हुआ उनमें से वो जिनको बंदर और सूर बनाया और शैतान के अपना सरकशों के गुलाम बना दिया जिनको। तो लिहाजा ये है वो लोग। तो अल्लाह पाक जो है फरमाया और वही है खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला। तो फरमाया लहू मुकालिदुस समावाति वल अर्द यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिरु इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। उसी के लिए है कुंजियां आसमानों और जमीन की, वो फैलाता है रिज़्क़ जिसके लिए चाहता है, वो चाहता है, और वो तंग करता है कर देता है, यानी कि जिसके लिए चाहता है फैलाता है, जिसके लिए चाहता है तंग करता है। बेशक वो हर चीज से वो खूब जानता है, यानी कि अल्लाह पाक को खूब जानने वाला है हर चीज को। तो लिहाजा ये देखें अभी यहाँ भी यही फरमा दिया कि कुंजियां आसमानों जमीन के अल्लाह के हाथ में है। तो लिहाजा अल्लाह पाक जो है वो हर चीज का मालिक है। इन पहली सूरतों में यही मजमून शुरू से हम पढ़ते मतलब चले आ रहे हैं कि हकमियत सारी अल्लाह की है, हर चीज अल्लाह के कंट्रोल में है। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि इस सूरत का जो मेन मकसद है वो अल्लाह के हुक्म को किस तरह कायम करना और कौन लोग कायम करेंगे, और मतलब ये सारा चैप्टर है वो आगे जाकर आएगा। अभी फिलहाल यही बताया जा आप मतलब इस आयत में मतलब सूरत में यही चीज बावर कराई जा रही है कि ये सारी हुकूमत और ये जितना दाम है सिर्फ अल्लाह का है, ताकि आप अपने ज़हन नशीन अच्छी तरह ये बात कर लें। ये नहीं कि ये जानते तो सब है, ज़हन नशीन करने से मुराद ये है कि जान ले और उसके ऊपर खड़े हो जाए, ये अमल है। तो खैर आज हमारा इख्तिताम सूरतुल शूरा की 12 नंबर आयत पर हुआ और इंशाल्लाह यहाँ से आगे फिर शुरुआत होगी।